થશે 8મી મે બુધવારે અને આઈપીઓ ક્લોઝ થશે 10મી મે શુક્રવારે. એન્કર બુક પબ્લિશ થશે 7મી મે મંગળવારે. આઈપીઓનું પ્રાઇસ બેન્ડ છે 300 થી 315 રૂપિયા. 47 શેરનો લોટ છે. આઈપીઓ છે 3000 કરોડનો, જેમાં 2000 કરોડનું ઓફર ફોર સેલ છે અને ફ્રેશ ઓફર છે 1000 કરોડની. 50% QIB, 15% HNI અને 35% રિટેલ. થોડી કંપનીની માહિતી આપું તમને તો કંપની રિટેલ ફોકસ્ડ હોમ ફાઇનાન્સ કંપની છે લો ઇન્કમ હાઉસિંગ સેગમેન્ટમાં. In terms of book size, AUM, हमारा book almost 20,000 crores पहुंच गया, 19,900 to be precise. Our net worth has reached 4,200 crores. What have we created? हमने 100% secured retail book बनाया है. हमारा कोई exposure developer book या corporate book में नहीं है. The testimony to that is कि हमारा average ticket size on the book stands at 10 lakh rupees. हमारा average ticket size to an individual home loan is only 10 lakh rupees. Incremental today, because this is book created over 14 years, incremental ticket size आज की डेट में हमारा 13 lakh rupees है. How many customers do we have on the book? Almost 2,60,000 live customers we have on the book. How has the book behaved over a period of 14 years? As of March 23, हमारा NPA number was 1.2%. 9-month ending December 23 was 1.4%, and the same period in 22 we were 1.8%. So our asset quality versus 22 to 23 has improved by about 40 pips. Another important factor in our business होता है लोन टू वैल्यू. एक प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू पर आप कितना लेंड कर रहे हैं. The average of the book today stands at only 58%, which effectively means that the end user has a lot of equity in the property. End user का काफ़ी equity property में already है. Another two important factors of the kind of book जो हमने बनाया है, 57% of our book is salaried customers. And 73% of our book happens to be in the EWS LIG, which is economically weaker section and lower income group. That was the only reason why the company in the initial stage was formed, because IFC का वो requirement था कि आप इसी segment को cater करेंगे. We happen to be the largest low income housing finance player with 19,900 crores of AUM, 100% secured retail book, pan India presence, 487 branches as I told you. In terms of district presence, we are in 533 districts in the country out of a total of 806 available districts in the country today. We are highly profitable in terms of PAT growth, 29% PAT CAGR, and we have an ROE of 18.4%. तो हमारा टोटल लाइबिलिटीज अराउंड 13,000 करोड़ है दिसंबर में. और उसका अगर ब्रेकअप देखिए आप तो हमारा NHB जो नेशनल हाउसिंग बैंक है, जो हमारा रेगुलेटर है, वो रीफाइनेंस भी देता है हमें. तो अबाउट 27% of our over liabilities is coming from NHB. NHB इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज लोएस्ट कॉस्ट ऑफ फंडिंग देता है पूरा सेक्टर को, और हमारा भी बैलेंस शीट पे लोएस्ट कॉस्ट ऑफ फंड्स NHB से आता है. बैंक्स का टोटल कंट्रीब्यूशन जो 62% हुआ करता था अभी 55% है. सो डिपेंडेंसी ऑन बैंक्स हैज़ गॉन डाउन अ बिट. एंड बाकी जो है NCDs है. हम ऑलमोस्ट ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स सबके साथ डील करते हैं. और NCDs हम प्रोडोमिनेटली प्लेस करते हैं म्यूचुअल फंड्स के साथ. ऑलमोस्ट ऑल द बिग म्यूचुअल फंड्स के साथ हम काम करते हैं NCD प्लेसमेंट में. हमने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC के साथ भी एक 7 साल का एक ग्रीन बॉन्ड टाइप प्लेस किया था. सो इन दैट सेंस हमारा ये होप यही है कि जो NCDs का टेनर है जो टिपिकली 3 साल हो, वो और बड़े 5 साल या 7 साल हो जाए, बिकॉज हम जो लोन देते हैं होम लोन्स वो टिपिकली लॉन्ग ड्यूरेशन लोन्स हुआ करता है. आप अगर देखेंगे फ्लोटिंग और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट का जो ब्रेकअप है हमारा पोर्टफोलियो का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, 83% हमारा जो एसेट्स है AUM है वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है. और 79% हमारा जो बोरोइंग्स है वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है. इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि अगर हमारे बैंकर्स, हमारे लेंडर्स ने अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया तो हमारे पास कैपेबिलिटी है ये इंटरेस्ट रेट को हम पास ऑन कर सकते हैं हमारे बोरोवर्स को. लास्ट 18 मंथ्स में हमने 125 बिप्स पास ऑन किया है हमारे कस्टमर्स को. हमने 50 बिप्स अक्टूबर 22 में पास ऑन किया था और 75 बिप्स पास ऑन किया था हमने अप्रैल 23 में. उसी तरह से जब इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स होता है और जब इंटरेस्ट रेट्स कम होने लगते हैं, ऑब्वियसली हमको पास ऑन बैक करना पड़ता है टू द कस्टमर. सो ये फ्लोटिंग रेट रहने का एडवांटेज कस्टमर को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देता है. कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम फाइनेंशियल्स के बारे में जरा मोड़ लेते हैं और जस्ट ओवरऑल मैं फाइनेंशियल्स का आपको
जरा डिटेल्स देता हूँ. मेनली 9 months वर्सेस 9 months, 9 months दिसंबर 22 वर्सेस 9 months 23 दिसंबर आप देखोगे तो हमारा ओवरऑल डिसबर्समेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग 25% ग्रोथ डिलीवर किया है. इन AUM हमारा ग्रोथ रेट 21-22% है. ओवरऑल पैट 35% से ग्रो हुआ है. हमारा 9 months में वी वर द लार्जेस्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ AUM एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट अक्रॉस ऑल द peers. In terms of ROA, very strong ROA 4.2%, ROE 18.4%. ऋषि आपको स्प्रेड के बारे में बात कर रहे थे कि 5.6 to 5.8% हमारा स्वीट स्पॉट है स्प्रेड का. हम नेक्स्ट 2 to 3 years में यही स्वीट स्पॉट के अंदर काम करना चाहेंगे. इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट टू इनकम आप देखोगे तो हमारा कॉस्ट टू इनकम रेशियो 36-37% है. 38% आपको जो बीच के साल में जो एक स्पाइक दिखा था वही साल था जो कोविड के बाद का साल था. वहाँ पे हमने सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट किया था इंफ्रास्ट्रक्चर में, ब्रांच एक्सपेंशन में, हमारा डिजिटाइजेशन प्रोग्राम और डेटा एनालिटिक्स टीम का सेटअप में. सो बट आप अगर देखोगे तो 36-37% कॉस्ट टू इनकम अगेन आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन क्लास व्हेन इट कम्स टू ऑल द peers. NPAs हम टिपिकली 1.1-1.2% के बीच में रहते हैं. दिसंबर एंड में कंपेयर करोगे तो आपको दिसंबर एंड में 1.4% NPA दिखता है. और आप अगर दिसंबर 22 के साथ कंपेयर करें, दिसंबर 22 में हमारा NPA 1.8% था. तो 1.4% दिसंबर 23 वर्सेस 1.8% दिसंबर 22. सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट वहाँ पे भी हुआ है. आप डेट टू इक्विटी आप अगर देखोगे तो हमारा डेट टू इक्विटी 3.1x है और टिपिकली हम 3.1 to 3.5 के बैंड के बीच में रहेंगे. हमने आपका सब लिस्टेड पेयर्स के आप देखोगे तो सब लिस्टेड पेयर्स लेस देन 4 रहते हैं और रेटिंग एजेंसीज का कंफर्ट लेवल भी 4.5% के 4.5 टाइम्स के ऊपर नहीं. तो हम टिपिकली 3.1 to 3.4 के बीच में ही रहेंगे.